When the Lord comes into your heart now, इसी समय जब प्रभु आपके दिल में आएगा, the kingdom of God comes into you. तो आपके अंदर परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। If you read Romans 14 and verse 17, यदि आप रोमियो 14 अध्याय के 17 पद को पढ़ें, the Bible says, बाइबल कहती है, God will reign the kingdom of God and the blessings of the kingdom of God in you. परमेश्वर आपके अंदर अपने राज्य और अपने राज्य की आशीषों की वर्षा करेगा। Till now you were only suffering with the troubles of the world. अब तक आप केवल संसार की परेशानियों से जूझ रहे थे, But now as Jesus is coming into your heart, अब जब यीशु आपके दिल में आ रहा है, He's bringing the kingdom, His kingdom's blessings into your heart. तो वो अपने राज्य की आशीषें आपके दिल में लेकर आ रहा है। What are those kingdom's blessings which are coming as a rain to you? राज्य की वो आशीषें क्या हैं जो वर्षा के समान आपके अंदर आ The रही first हैं? one is righteousness. पहली आशीष है धार्मिकता, Righteousness, धार्मिकता, holiness. पवित्रता। I know you are longing for holiness, मैं जानता हूं आप पवित्रता के लिए लालयित हैं, longing to be made holy. आप पवित्र होने के लिए लालयित हैं। Tonight the reign of righteousness, the holiness of God is going to come into you. आज परमेश्वर की पवित्रता, उसकी धार्मिकता की वर्षा आपके अंदर आ रही And है। secondly, He is going to rain peace into you. दूसरी बात, वो आपके अंदर शांति की वर्षा करेगा। The kingdom of God is peace. परमेश्वर का राज्य शांति का है। Peace. शांति, Peace. शांति। I know many of you are saying, I have never slept peacefully for several months and years. मैं जानता हूं आप में से बहुत से ऐसे हैं जो कह रहे हैं, मैं कई महीनों से, कई वर्षों से चैन की नींद नहीं सोया I हूं। have never had peace in my job. मेरी नौकरी में मुझे कभी शांति नहीं मिली। I have never had peace in my studies. अपनी पढ़ाई में मुझे कभी शांति नहीं मिली। I have never had peace in the family life. मुझे पारिवारिक जीवन में कभी शांति नहीं मिली। But tonight, लेकिन आज रात Jesus is coming, यीशु आ रहा है, coming as a rain, वर्षा के समान आ रहा है, and sending the rain of peace into you. और आपके अंदर शांति की वर्षा भेज रहा है। How many of you want God's peace? आप में से कितनों को परमेश्वर की शांति चाहिए? Yes, show your hands to Him and tell Him, Lord, I need you. उसे अपना हाथ दिखाएं और कहें, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, I need peace. मुझे शांति की जरूरत है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष He दे। will bring the rain of the joy of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के आनंद की वर्षा को लेकर आएगा। The joy of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का आनंद। You may say, I have never laughed for several months. शायद आप कह रहे हैं कि कई महीनों से मैं हंसा नहीं हूँ, I have never had joy. मुझे कभी आनंद नहीं मिला, I have had only accusation. मुझे केवल दोष झेलने पड़े, I have had only wrong, divisive words spoken against me. मुझे अपने विरुद्ध केवल भेदभाव की बातें ही सुननी पड़ी हैं, I've had only deceit coming against me. मुझे केवल अपने विरुद्ध धोखा ही मिला। But tonight God says, लेकिन आज रात प्रभु कहता है, Jesus says, यीशु कहता है, my child, you have asked me to come in. मेरे बच्चे, तूने मुझे अंदर आने के लिए कहा है, I'm going to send you the river of joy, मैं तेरे लिए आनंद की नदी भेजूंगा, the showers of joy. आनंद की वर्षा भेजूंगा। That's the great blessing God is going to give every one of us. आज यही महान आशीष परमेश्वर हम सबको देने जा रहा है। All right, the rain of righteousness. तो धार्मिकता की जो वर्षा है, If you read Hosea 10 and verse 12 यदि आप होशे 10 के 12 पद को पढ़ें, and Joel 2:23, योएल 2 के 23 को पढ़ें, the Bible says God will send the rain of righteousness upon us. बाइबल कहती है परमेश्वर हम पर धार्मिकता की वर्षा भेजेगा। Righteousness will come upon us like a rain, धार्मिकता वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगी, and it will clean up all our deceptions and all the sins. और यह वर्षा हमारे सब धोखे और पाप को धो There was a डालेगी। man who wrote about his life to me. His name is Ramesh. He's a lawyer in Gujarat. गुजरात में रमेश नामक एक वकील हैं जिन्होंने अपने जीवन के विषय में मुझे लिखा। He was a successful lawyer, वो एक बहुत अच्छे और सफल वकील थे, but then he got addicted to alcohol. लेकिन फिर उन्हें शराब की लत लग गई, And as he became an addict, और जब वे शराब के आदी हो गए he started having illicit affair with a woman. तो एक स्त्री के साथ उनके गलत संबंध हो गए। He enjoyed it. उन्हें यह अच्छा लगता था, But alas, लेकिन दुख की बात है, one fine day, एक सुबह a skin problem afflicted him. उनको त्वचा का एक रोग लग गया, And it began to spread across his body. और ये उनके पूरे शरीर में फैलने लगा। The doctors did their best. डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, It would not go away. लेकिन वो ठीक नहीं हुए। Then it began to sting.
फिर उनकी त्वचा से बदबू आने लगी। He could not go out. वो बाहर नहीं जा पाते थे। He could not go and practice his law. वो जाकर वकालत का काम नहीं कर पाते थे। He locked himself in his home. और उन्होंने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया। Night and day he was ashamed. रात और दिन वो शर्मिंदगी महसूस करते थे। His heart was broken. उनका दिल टूट गया था। And he began to borrow to sustain the family. और वो परिवार को पालने के लिए लोगों से लगातार उधार लेने लगे। This was not just 1 month, 2 months. यह केवल 1-2 महीने नहीं चला। 10 years he suffered. 10 साल तक उन्होंने दुख झेला। No remedy. कोई उपचार नहीं। The children couldn't go to school. बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। Darkness and despair in the family. परिवार में अंधकार और निराशा थी। Shame. शर्मिंदगी थी। Loneliness. अकेलापन था। And finally one day और अंत में एक दिन he shared this with his wife. उन्होंने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। She broke down वो रोने लगी and wept और रोती रही, and wept रोती रही, and wept. रोती रही। Maybe you are in that situation. शायद आप भी ऐसी ही स्थिति में हैं। Maybe you're also saying, I have no righteousness. शायद आप भी कह रहे हैं मुझ में कोई धार्मिकता नहीं। I have lost my righteousness. मैंने अपनी धार्मिकता को खो दिया है। I don't know where to go मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊं। because of my own wrongdoing, मेरी अपनी ही गलतियों के कारण, my own bad habits. मेरी अपनी बुरी आदतों के कारण I am tormented with guilt. मेरा दोष मुझे कचोटता है। Guilt is killing me. मेरा दोष मुझे मार रहा है। I can't live anymore. अब मैं और जी नहीं सकता। I have brought my family to shame. मैंने अपने परिवार को लज्जित किया है। I am the reason for the failure of my children. मैं ही अपने बच्चों की नाकामी की वजह हूं। Maybe guilt is tormenting you शायद दोष आपको सता रहा है and you're crying out for righteousness. और आप धार्मिकता के लिए पुकार रहे हैं। The Bible says बाइबल कहती है there is a rain which will come to cleanse you. आपको शुद्ध करने के लिए एक वर्षा आएगी। If you read 1 Corinthians 1 and verse 30, यदि आप पहला कुरिन्थियों 1:13 पद को पढ़ें, the Bible says बाइबल कहती है Jesus became our righteousness. यीशु हमारी धार्मिकता बन गया। He offered himself. उसने अपने आप को दे दिया। He offered himself to bring the righteousness into us like a rain. उसने हमारे अंदर धार्मिकता को वर्षा के समान लाने के लिए अपने आप को दे दिया, Cleanse us from all our unrighteousness. ताकि हमें हमारे सारे अधर्म से शुद्ध करे, All the guilt, सारे दोष से, all the shame, सारी लज्जा से, all the attacks from the evil powers. दुष्ट की सारी शक्तियों के हमलों से To deliver us, हमें छुड़ाने के लिए God came down in the form of a human being called Jesus. परमेश्वर यीशु नामक एक मनुष्य के रूप में उतर आया। He was man, वो मनुष्य था, but yet he was God. तो भी परमेश्वर था। He knew no sin. उसमें कोई पाप नहीं था। Nobody could find any sin in Jesus when he walked in this world. जब यीशु इस संसार में था तो कोई उसमें एक भी पाप नहीं ढूंढ पाया। But then the Bible says, लेकिन फिर बाइबल कहती है for our sins to be forgiven, हमारे पापों को माफ करने के लिए there has to be a sacrifice. एक बलिदान की आवश्यकता है। And Hebrews 9:22 says, और इब्रानियों 9:22 कहता है, yes, there is a sacrifice through the bulls and so on. हाँ, बैलों और अन्य जानवरों की बलियां तो दी जाती हैं, The blood that is shed from them. उनका लहू तो बहाया जाता है, But it cannot deliver us from sin forever. लेकिन यह लहू हमें सदा के लिए पाप से नहीं छुड़ा सकता। It cannot take the nature of sin out of us. ये हम में से पाप के स्वभाव को नहीं निकाल सकता। So somebody had to come इसलिए किसी को आना था who knew no sin जिसमें कोई पाप ना हो, to become a sacrifice for you and for me. कि वो आपके और मेरे लिए एक बलिदान बन जाए। Which man is holy? कौन सा पुरुष पवित्र है? Which woman is holy? कौन सी स्त्री पवित्र है? The Bible says in Romans 3:23, रोमियो 3:23 पद में बाइबल कहती है, all human beings have sinned and have come short of the glory of God. सब मनुष्यों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। So humanity has been groaning, unable to come out of sin. इसलिए मनुष्य पाप में से ना निकल पाने के कारण आहें भरता है। So God said, सो परमेश्वर ने कहा, let me go. मैं जाता हूँ, Let me go. मैं जाता हूँ, Let me go. मैं जाता हूँ, To save my children from guilt and sorrow. कि मैं अपने बच्चों को दोष और शोक से बचाऊं, To send the rain of righteousness to make them holy in this world. इस संसार में उन्हें पवित्र बनाने के लिए धार्मिकता की वर्षा को भेजूं। And Jesus came और यीशु आया and offered himself as a sacrifice on the cross. और अपने आप को बलिदान के रूप में क्रूस पर दे दिया। If you read Isaiah 53 and verse 5, यदि आप यशाया 53 के 5 पद को पढ़ें, Jesus was bruised, beaten for our sins,
for our transgressions. यीशु हमारे ही अपराधों और पापों के लिए घायल किया गया और कुचला Instead गया। of we being beaten, इसके बजाय कि हमें मार पड़ती, Jesus was beaten. यीशु को मार पड़ी। He took our sins upon himself. उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए। He said, put every sin of every man, every woman in this world upon me. उसने कहा संसार के हर पुरुष और स्त्री का पाप मुझ पर लाद दो। He was bruised for our iniquities. वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया। The chastisement of our peace came upon him. हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। My friend, मेरे दोस्तों, today, आज as you open your heart to Jesus, जब आप यीशु के लिए अपने दिल को tell खोलेंगे, him, Jesus, उसको कहेंगे यीशु, you have sacrificed yourself on the cross तूने मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, for my sins to be forgiven. मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, And you shed your holy blood. और तूने अपना पवित्र लहू बहा दिया। And the Bible says in 1 John 1:7, और पहला यूहन्ना 1:7 में बाइबल कहती है, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Tell him, I believe it, Lord. उसे कहें प्रभु मुझे विश्वास है, Jesus, यीशु send your blood which you shed for me on the cross like a rain to heal me, to cleanse me, Lord. प्रभु मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए अपने उस लहू को मेरे ऊपर वर्षा के समान भेज जो तूने क्रूस पर बहाया। Right where you are. जहां पर भी आप हैं, Right where you are. आप जहां पर भी You हैं, can cry right now. इसी समय आप पुकार सकते हैं। Jesus is by your side. यीशु आपके पास है, Tell him, उससे कहें Jesus, यीशु, Lord, wash me with that blood that you shed on the cross. प्रभु मुझे उस लहू से धो दे जो तूने उस क्रूस पर बहाया। Take away my guilt. मेरे दोष को दूर कर दे, Take away my unrighteousness. मेरे अधर्म को दूर कर दे प्रभु। I don't want to live in shame and sorrow in darkness. मैं अब से लज्जा, शोक और अंधकार में नहीं जीना चाहता। I don't want to have the devil surrounding me. मैं शैतान के द्वारा घिरा नहीं रहना चाहता। I want to be free. मैं आजाद होना चाहता I हूँ। want to be free. मैं आजाद होना चाहता I हूँ। want to enjoy you, Jesus. मैं तेरा आनंद लेना चाहता हूँ यीशु। I want to enjoy you. मैं तेरा आनंद लेना चाहता हूँ। I need God. मुझे परमेश्वर चाहिए, I need God. परमेश्वर I चाहिए। want to live in this world with holiness. मैं इस संसार में पवित्रता के साथ जीना चाहता हूँ। Wash me with your blood, Lord. मुझे अपने लहू से धो दे प्रभु। Cry out right now. इसी समय प्रभु को पुकारें। The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। It is God's blood, यह परमेश्वर का लहू है, washed by the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Now he will cleanse you. इसी समय वो आपको शुद्ध करेगा। Now he will cleanse इसी you. समय वो आपको शुद्ध करेगा। You don't need to do anything else. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, Just believe सिर्फ विश्वास करें and cry out to Jesus. और यीशु के सामने पुकारें। He's cleansing you right वो now. अभी आपको शुद्ध कर रहा है, He's cleansing you right now. अभी आपको शुद्ध कर रहा है। I see the name of a man called Henry. मैं हेनरी नामक व्यक्ति को देख रहा हूँ। You are in this direction, Mr. Henry. आप इस दिशा में बैठे हुए हैं मिस्टर हेनरी। I see blood in your hand. आपके हाथों पर मुझे खून दिखाई दे You रहा have है। committed adultery. आपने व्यभिचार किया है And because of that, और उसकी वजह से you have a terrible cough. आपको भयंकर खांसी है। Yes, demon powers are following you. हाँ, दुष्ट की शक्तियां आपके पीछे लगी हुई हैं। Outside you are so bold. बाहर से आप बहुत दिलेर हैं, But how much you cry in. लेकिन गुप्त में आप बहुत रोते हैं। Repent tonight. आज रात पश्चाताप करें, Repent tonight. पश्चाताप करें। Henry, repent हेनरी पश्चाताप करें and cry to Jesus. और यीशु को पुकारें। My friend, मेरे दोस्त, the glory of God is right now here. परमेश्वर की महिमा इस समय यहाँ पर है। Turn your heart to Jesus. अपना हृदय यीशु की ओर मोड़ें, He will transform you वो आपको बदल डालेगा। right now. इसी समय The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है।